Today I will start chapter 5th, coal and petroleum. So let's start. First of all, introduction. We use various materials for our basic needs. Some of them are found in nature and some have been made by human efforts. Since all these are obtained from nature, they are called natural resources. So natural resources are the resources which we are obtained from nature. Activity first. Make a list of various materials used by us in daily life and classify them as natural and man-made. So here you can differentiate natural and man-made materials. What are the natural and what are the man-made, means artificial material. Classification of resources. Can air, water and soil be exhausted by human activities? You have already studied about water. Is water a limitless resource? बच्चों आपने पढ़ा होगा कि एयर, वाटर और सॉइल ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ से क्या ये एग्जॉस्ट किए जा सकते हैं या ये ख़त्म हो सकते हैं? पिछली क्लास में आपने पढ़ा था कि वाटर एज अ प्रीशियस रिसोर्स. इज़ वाटर आ लिमिटलेस रिसोर्स? क्या वाटर आपका लिमिटलेस रिसोर्स है? ये आपको बताना है. So now classification of resources in the light of the availability of various resources in nature. Natural resource can be broadly classified into two kinds: inexhaustible natural resource and exhaustible natural resource. Now comes on inexhaustible natural resource. These resources are present in unlimited quantity. So these resources are present in unlimited quantities in nature and are not likely to be exhausted by human activities. Example, sunlight and air. Students, inexhaustible का मतलब होता है वो रिसोर्स जो ख़त्म ना हो, जो एंड ना हो. जैसे सनलाइट क्या कभी एंड हो सकती है? नहीं. एयर एंड हो सकता है? नहीं. तो these resources comes under the category of inexhaustible natural resources because these resources are present in unlimited quantity. इनकी क्वांटिटी अनलिमिटेड होती है. ये ह्यूमन के एक्टिविटी के द्वारा एग्जॉस्ट नहीं किए जा सकते हैं, जैसे सनलाइट एंड एयर. Now exhaustible resource, natural resources. The amount of these resources in nature is limited. Inexhaustible में जो रिसोर्स था वो अनलिमिटेड क्वांटिटी का था, लेकिन एग्जॉस्टिबल में ये लिमिटेड क्वांटिटी का है. इसका लिमिट है. ये ह्यूमन की एक्टिविटीज़ के थ्रू एग्जॉस्ट किया जा सकता है, ख़त्म हो सकता है. एग्जाम्पल ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल्स, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. सो दीज आर द एक्सॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स. मीन्स ये रिसोर्स ह्यूमन के एक्टिविटीज़ के थ्रू हम इनका यूज़ अगर करते हैं तो ये ख़त्म हो सकते हैं बिकॉज दे आर लिमिटेड इन नेचर. नाउ इट इज़, आई होप इट इज़ क्लियर, बोथ एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. कोल. You may have seen coal or heard about it. It is as hard stone and is black in color. Coal is one of the fuels used to cook food. Earlier it was used in railway engines to produce heat to run the engine. It is also used in thermal power plants to produce electricity. Coal is also used as a fuel in various industries. So student, coal जो होता है, ये coal आपका ब्लैक स्टोन भी होता है या ब्लैक कलर का कह सकते हैं, हार्ड होता है नेचर में, और ये खाना बनाने के लिए इसका यूज़ होता है. या इट वाज यूज्ड इन रेलवे इंजन्स में इनका यूज़ होता है, थर्मल पावर में इनका यूज़ होता है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में, और रेलवे इंजन में ये स्टीम प्रोड्यूस करते हैं जिससे जो इंजन है रेल का वो आगे बढ़ सके. और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वेरियस इंडस्ट्रीज़ में भी इन कोल का यूज़ होता है. Story of the coal.
About 300 million years ago, Earth had dense forest in low-lying wetland areas. Due to natural process like flooding, these forests got buried under the soil. As more soil deposited over them, they were compressed. The temperature also rose as they sank deeper and deeper. Under high pressure and high temperature, dead plants go slowly converted to coal. As coal contains mainly carbon, the slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization. Since it was formed from the remains of the vegetation, coal is also called as a fossil fuel. सो स्टूडेंट 300 मिलियन ईयर्स एगो, पहले मतलब 300 मिलियन ईयर्स एगो आपको आपकी जो वेटलैंड एरियाज़ थे, यहाँ पे लो लाइंग एरियाज़ थे वेटलैंड वाले, वहाँ पे नेचुरल प्रोसेस हुआ और फ्लडिंग हुआ. जैसे फ्लडिंग के थ्रू या बहुत सारे ऐसे जो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं उनके थ्रू क्या होता है कि जो फॉरेस्ट थे वो सॉइल के अंदर जो है बरीड हो गए, दब गए. अब क्या हुआ कि जब ऐसे लगातार कई साल बीतते गए और नीचे एज अ डीपर वो दबते चले गए सॉइल के अंदर, तो क्या हुआ कि एज मोर सॉइल डिपोजिटेड ओवर देम दे वर कंप्रेस्ड. उनमें एक प्रेशर डेवलप्ड हुआ, वो कंप्रेस्ड हो गए, उसमें प्रेशर और टेम्परेचर डेवलप हुआ. ठीक है, जब प्रेशर और टेम्परेचर डेवलप हुआ, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर, तो डेड प्लांट्स कन्वर्ट हो गए, किसमें? कोल में कन्वर्ट हो गए. ठीक है, एज कोल कंटेन्स मेनी कार्बन, और आपको पता है कोल में कार्बन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है. द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन. सो स्लो प्रोसेस है ये. स्टोरी ऑफ कोल में जो कोल फॉर्मेशन हुआ कैसे हुआ, ये स्लो प्रोसेस के थ्रू हुआ, जिसमें वेजिटेशन जो थे, जो प्लांट्स थे, वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो गए? कोल में. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन. Since it was formed from the remains of vegetation, coal is also called as fossil fuel. कोल को क्या कहा गया है? फॉसिल फ्यूल. When heated in air, जब हम कोल को हीट करते हैं, कोल बर्न होता है and produces mainly carbon dioxide gas. Coal is processed in industry to get some useful products such as coke, coal tar and coal gas. ठीक है, कोल को जब हम इंडस्ट्री में प्रोसेस करते हैं तो उनसे हमें कोक भी मिलता है, कोल भी, तार भी मिलता है और कोल गैस भी मिलता है. फर्स्ट वन इज कोक. व्हाट इज कोक? कंपोनेंट्स ऑफ कोल में पहले हम कोक पढ़ेंगे. इट इज़ अ टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस. It is almost pure form of carbon. Coke is used in the manufacture of steel and in the extraction of many metals. स्टूडेंट, ये जो कोक होता है ये टफ होता है नेचर में, पोरस होता है, मीन्स प्रॉपर एरिएशन, एयर इनमें पास हो सकती है, एंड ये ब्लैक सब्सटेंस है. सो इट वॉज अ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन. कोक इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील. स्टील बनाने में और बहुत सारे मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में, प्योरीफाई करने में कोक का यूज़ होता है. नाउ कंपोनेंट्स ऑफ कोल तार में ये बी ऑप्शन आपका है, या बी वाला पॉइंट है कोल तार. व्हेन कोल तार इज हीटेड इन एयर, कोल बर्न्स and produces many carbon dioxide gas. Coal is processed in industry to get some useful products such as coke, coal tar and coal gas. About 200 substances. Products obtained from coal tar are used as starting material for manufacturing various substances used in everyday life में. जब हम कोल तार को हीट करते हैं, ये बर्न होता है और इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है. कोल तार जो है इसको हम इंडस्ट्री में प्रोसेस करते हैं तो इससे कोक, कोल तार और कोल गैस निकलती है, जिसमें लगभग ये मिक्सचर होता है 200 सब्सटेंसेस का. प्रोडक्ट जो इसका कोल तार का मिलता है ये हमारे जो डेली लाइफ में जो भी हमारी डेली लाइफ है उसमें इसका यूज़ होता है. इन इंडस्ट्री इट इज़ यूज फॉर मेकिंग लाइक सिंथेटिक डाइज. कोल तार का इंडस्ट्री में जो यूज़ होता है सिंथेटिक डाइज में, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव, परफ्यूम्स, प्लास्टिक, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, रूफिंग मटेरियल्स एटसेट्रा. इंटरेस्टिंगली नैप्थलीन बॉल्स यूज टू रिपेल मॉथ्स एंड अदर इंसेक्ट आर आल्सो ऑब्टेन फॉर कोल तार. जो नैप्थलीन बॉल्स होती है ना, वो रिपेल करने के लिए, जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं उनको रिपेल करने के लिए नैप्थलीन बॉल्स भी कोल तार से
ऑब्टेन की जाती है या बनाई जाती है। दिस डे बिटुमेन अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ कोल तार फॉर मेटेलिंग द रूट्स। इस समय कोल तार की जगह पे ज़्यादा बिटुमिन का यूज़ किया जाता है। बिटुमिन, ये बिटुमिन यूज़ हो रहा है कोल तार की जगह पे रूट्स बनाने में। That is coal gas. Coal gas is obtaining during the process of coal to produce or to get coke. Coal gas is obtained during the processing of coal to get coke. It is used as a fuel in many industries situated near the coal processing plants. These days, bitumen, a petroleum product, is used in place of coal tar for metalling the road. Coal gas was used for street light for the first time in London in 1810 and in New York around 1820. Nowadays, it is used as a source of heat rather than light. आजकल ये हीट के रूप में यूज़ किया जाता है और सबसे पहले इसका यूज़ लंदन में 1810 में हुआ था। कोल गैस जो होता है ये आपको ऑब्टेन किया जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। कोल से हमें ये कोक ऑब्टेन होता है कोल गैस से। Petroleum. You know that petrol is used as a fuel in light automobiles such as motorcycles, scooters and cars. Heavy motor vehicles like trucks and tractor run on the diesel. Petrol and diesel are obtained from a natural resource called petroleum. Do you know how petroleum is formed? Petroleum was formed from organisms living in sea. As these organisms died, their bodies settled at the bottom of the sea and got covered with a layer of sand and clay. Over millions of years, absence of air, high temperature and high pressure transformed into dead organism into petroleum and natural gas. स्टूडेंट, जो पेट्रोलियम होता है ये आप आजकल जो ऑटोमोबाइल्स हैं जैसे मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स और कार्स में इनका यूज़ हो रहा है। हैवी मोटर्स व्हीकल जैसे कि ट्रक, ट्रैक्टर, ये भी पेट्रोल और डीजल से चलते हैं या रन करते हैं। पेट्रोलियम कैसे ऑब्टेन होता है? पेट्रोलियम को ऑब्टेन करने के लिए ये मीन्स कि ये लिविंग और जो ऑर्गेनिज़म हैं या सी के में रहने वाले जो ऑर्गेनिज़म हैं उनसे ये ऑब्टेन होता है। जब भी ये ऑर्गेनिज्म डेट करते हैं इनकी बॉडी सेटल डाउन हो जाती है, उसी वाटर में इनकी बॉडी सेटल डाउन हो जाती है नीचे ऑफ द सी एंड गॉट कवर्ड विद लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले। और इनकी बॉडी कवर्ड हो जाती है कुछ दिनों के बाद लेयर से, सैंड के लेयर से या क्ले के लेयर से। ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स जब ये नीचे डैम्प होते जाते हैं, वहाँ पे एयर की एब्सेंस हो जाती है, हाई टेम्परेचर डेवलप हो जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, डेड ऑर्गेनिज्म ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं किसमें, पेट्रोलियम में एंड नेचुरल गैस में। यू कैन सी हियर it show the deposition of petroleum and natural gas. You see that the layer containing petroleum oil and gas is above that of water. Why is it so? Recall that oil and gas are lighter than water and do not mix with it. अब जानते हो कि जो ऑयल होता है या गैस होता है ये वाटर से लाइटर होता है, जिसके कारण ये उसमें मिक्स नहीं होता वाटर में, इसीलिए गैस सबसे ऊपर, फिर ऑयल, फिर वाटर। The world's first oil well was drilled in Pennsylvania, USA in 1859. 8 years later, in 1867, oil was struck at Macomb in Assam. In India, oil is found in Assam, Gujarat, Mumbai, High and in the river basins of Godavari and Krishna. Refining of petroleum. Petroleum is a dark oily liquid. It has an unpleasant odor, so you can write the characteristics here of petroleum. It is a mixture of various constituents such as petroleum gas, petrol, diesel, lubricating oils, paraffin, wax, etc. The process of separating the various constituents fractions
और फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग। सो स्टूडेंट, सेपरेट करना, सेपरेशन का जो प्रोसेस है वेरियस फ्रैक्शंस में पेट्रोलियम को, वही उसी को हम रिफाइनिंग बोल रहे हैं यहाँ पे। इट इज़ कैरिड आउट इन पेट्रोलियम रिफाइनरी। ये होल प्रोसेस कहाँ पे कंडक्ट की जाएगी? ये पेट्रोलियम रिफाइनरी में की जाएगी। तो पेट्रोलियम अनप्लीजेंट होता है, उसकी स्मेल अच्छी नहीं होती है, अनप्लीजेंट होती है, एंड इट इज़ अ डार्क ऑयली लिक्विड। Many useful substances are obtained from petroleum and natural gas. बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंस हैं जो पेट्रोलियम से या ऑब्टेंड होते हैं या नेचुरल गैस से। मेनी यूजफुल सब्सटेंसेज ऑब्टेंड होते हैं। दीज आर टर्म्ड एज petrochemicals. I'm again repeating it. Many useful substances are obtained from petroleum and natural gas. पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंस निकलते हैं या ऑब्टेंड होते हैं, उनको हम पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं, उन्हीं को हम पेट्रोकेमिकल्स बोल रहे हैं यहाँ पे। These are used in manufacture of detergent, fibers, in fiber, polyester, nylon and acrylic etc. पॉलीथीन एंड अदर मैन मेड प्लास्टिक। जो ये पेट्रोकेमिकल है, इस पेट्रोकेमिकल का यूज़ डिटर्जेंट बनाने में, फाइबर, पॉलीथीन या मैन मेड प्लास्टिक बनाने में यूज़ किया जाता है। हाइड्रोजन गैस इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल गैस। नेचुरल गैस से हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन्ड होती है एंड इट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर, यूरिया, and due to its great commercial importance, petroleum is also called black gold। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है पेट्रोलियम का, इसीलिए इसको ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। टेबल 1, वेरियस कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेज आर गिवन इन टेबल फर्स्ट। जैसे एलपीजी का आप यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा ब्लड है। फ्यूल फॉर होम और इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है। पेट्रोल का मोटर व्हीकल्स में या मोटर फ्यूल और एविएशन फ्यूल्स में, जैसे एरोप्लेन वगैरह में। सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग में। केरोसिन का यूज़ किया जाता है, डीजल का, लुब्रिकेटिंग ऑयल का लुब्रिकेशन में, पैराफिन वैक्स का ऑइंटमेंट में, कैंडल्स में, वैसलीन में। बिटुमेन का यूज़ किया जाता है पेंट्स में एंड रोड सर्फेसिंग में। सो दीज आर द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेज यू कैन सी इन टेबल 1। Natural gas. Natural gas is very important fossil fuel because it is easy to transport through pipes. Natural gas is stored under high pressure and compressed natural gas. CNG is used for power generation and it is now being used as a fuel for transport vehicles because it is less polluting. Very important. It is a cleaner fuel. Very important. The great advantage of CNG is that it can be used directly for burning in homes and factories where it can be supplied through pipes. Such as network of pipelines exist in Vadodara, Gujarat, some parts of Delhi and other places. Student, जो नेचुरल गैस होती है बहुत इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लेस पोल्यूटिंग होती है, और दूसरी चीज़ कि ये क्लीनर फ्यूल भी बोला जाता है, जैसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG। ठीक है, इसका क्योंकि इसका डायरेक्टली हम यूज़ अपने घरों में कर ले हैं, क्योंकि पाइपलाइन से सीधे ये हमारे घरों में पहुंचता है। और जो इसका नेटवर्क है पाइपलाइन का, ये एग्जिस्ट करता है वडोदरा, जो कि गुजरात में है, एंड सम पार्ट ऑफ द दिल्ली एंड अदर प्लेसेस। Natural gas is also used in starting material for the manufacture of number of chemicals and fertilizers. Chemical fertilizers में इनका यूज़ हो रहा है। India has vast reserve of natural gas. In our country, natural gas has been found in त्रिपुरा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा। यहाँ पे ये नेचुरल गैस बहुत ज़्यादा मात्रा में इंडिया में पाई जाती है। सब नेचुरल रिसोर्स आर लिमिटेड। कुछ नेचुरल रिसोर्स आपके लिमिटेड हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, You have studied in the beginning of the chapter that some natural resources are exhaustible, like fossil fuel, forest, minerals. You know that coal and petroleum are fossil fuels. It required the dead organism million of years to get converted into these fuels. On the other hand, the no reserve of these will last almost a few hundred years. Moreover, burning of these fuels is a major cause of air pollution. ठीक है, इनसे थोड़ा एयर पोल्यूशन भी हो रहा है, and their use is also linked to global warming. इनसे ग्लोबल वार्मिंग भी होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये अनबर्न पार्टिकल रिलीज़ करते हैं।
Some natural resources are limited. In this, it is therefore necessary that we use these fuels only when absolute, जब ज़रूरत हो ज़्यादा तभी हम इनका यूज़ करें. And this will result in better environment, smaller risk in global warming and their availability for a longer period of time. In India, the Petroleum Conservation Research Association (PCRA) advise people how to save petrol, diesel while driving. कैसे बचाना है ये PCR पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन बताता है. इसलिए जब भी ज़रूरत हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरत, तभी हमको जो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स हैं उनका यूज़ करना चाहिए, बिकॉज ये नेचर में लिमिटेड है. देयर टिप्स आर ड्राइव एट ए कांस्टेंट स्पीड एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल. जब भी हो कांस्टेंट स्पीड में अपनी बाइक ट्रेवल करिए या कार्स को उसको चलाइए आप. एंड स्विच ऑफ द इंजन्स एट ट्रैफिक लाइट्स. ट्रैफिक लाइट्स में अपने इंजन को स्विच ऑफ कर सकते हैं. और एट अ प्लेस वेयर यू हैव टू वेट, या जहाँ पे आप किसी का वेट कर रहे हैं वहाँ पे अपनी लाइट्स को अपने इंजन को ऑफ कर सकते हैं. इंश्योर करेक्ट द टायर प्रेशर. चलने से पहले अपने टायर प्रेशर को आप थोड़ा सा देख लें कि उसमें टायर प्रेशर करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है. इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल और रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल. ये सारी चीज़ें आप करके यू कैन सेव द लिमिटेड रिसोर्स. आप लिमिटेड रिसोर्स को सेव कर सकते हैं. Okay, so thank you students, thanks for watching.